धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम। रईस खान राम मंदिर निर्माण का आंदोलन जो शुरू किया था वो विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया था, पूरे जोर शोर से शुरू किया था। और अब वही विश्व हिंदू परिषद अब राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हालांकि साफ कहा जा रहा है कि ना जी, कोई विश्व हिंदू परिषद या किसी और तरीके का कोई संगठन चंदा नहीं उगा रहा है, किसी से चंदे का कोई लेना देना नहीं है। चंदा तो सीधे राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान ट्रस्ट के खाते में जा रहा है, उसी से इसका पूरा का पूरा सरोकार है। फिलहाल की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 2100 करोड़ जुटा लिए गए हैं, 1100 करोड़ का टोटल खर्च आएगा, यानी कि अभी के मुताबिक 1000 करोड़ ज्यादा जुटा लिए गए हैं। लेकिन फिर भी चंदे का सिलसिला अब भारत से निकालकर विदेशों में ले जाने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए जो तमाम नियम कानून है उनका पालन करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि विदेशों से भी चंदा जुटाया जा सके। कहा जा रहा है कि भारत से तो 2100 करोड़ मिले और इससे कई गुना ज्यादा विदेशों से मिल सकते हैं। लेकिन ऐसी ही बीच में खबर आ जाए ऑस्ट्रेलिया से और वहां की संसद में मामला गूंज जाए कि आरएसएस का जो शिद्दत पसंद, यही वर्ड यूज किया गया है, आरएसएस का जो शिद्दत पसंद संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कैसे? ऑस्ट्रेलिया के सीनेट में यानी कि पार्लियामेंट में यानी कि संसद में वहां के सीनेटर यानी कि सांसद ने इस मुद्दे को उठाया। उन्हीं की जबानी सुन लीजिए, फिर आगे कुछ बात करते हैं। Well, the most recent attack that I have heard of, which was again at Harris Park, and again as recently as Sunday night, where 4 young men from the Sikh community were celebrating. In fact, they got a new car, and then it was smashed. They were stopped on the street, and it was smashed. And they were identified in the course of the assault. I understand that the assailants identified the reason they were smashing was because of the occupants being from the Sikh community, and it came from far-right extremist political position. I have not seen a single report of a violent act coming from any other part of the political spectrum from the Indian community other than the extremist right-wing Hindu nationalist part of the community. Have you got any other incidents you can report? But sometimes being the champion of harmony in the community involves naming and calling out extremist elements that are tearing down that harmony in the community. And general platitudes may not be the best response if the violence and the aggression is coming from a known source. Minister, do you accept that? Minister, does Multiculturalism New South Wales have any oversight of the fact that one far-right Hindu extremist organisation called Vishva Hindu Parishad, which is designated as a militant extremist religious organisation in the CIA World Handbook, is providing scripture instruction in New South Wales public schools? Do you have any role in vetting that or speaking with the Education Department and reviewing who's providing scripture lessons in New South Wales public schools? And just for the record, I appreciate how sensitive this is, and I appreciate that there needs to be steps working across the community. I'm not pushing back against what you're putting to me, Mr. Thank LaPosta. you. I appreciate that. Could I ask you what, if anything, is being done by your office, Minister or Mr. LaPosta, to deal with neo-Nazis and neo-Nazi extremists? Is that on your radar? And what, if any, work you're doing in that space? सुन लिया आपने, इंग्लिश में वो बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं इंग्लिश में वहाँ पे लोग बोलते हैं। अब इनके बारे में पहले प्रोफाइल बता देते हैं और फिर ये क्या क्या रहा है वो भी आपको बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक इलाका है न्यू साउथ वेल्स, वहाँ से ये सांसद अब महोदय आते हैं। इनका कहना है कि ये संगठन जो है ऑस्ट्रेलिया के भाईचारे के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। इसकी जो शिद्दत पसंदी है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत खतरा पैदा हो गई और उसका जो लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है उससे बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इस तरीके की बात करते हुए न्यू साउथ वेल्स स्टेट के जो सीनेटर हैं जिनका नाम बताया जा रहा है डेविड शो ब्रिज, इस खबर को उन्होंने बात कही है, उनका वीडियो आपके सामने रख चुके हैं। इस खबर को कई जगह सर्च किया, आपको पता है कोई भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो इस खबर को जगह देने के लिए इसको नेशनल हेराल्ड ने छापा है या इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को जगह दी है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आपने अगर ध्यान से सुना हो या दोबारा से सुनेंगे तो डेविड शो ब्रिज ने
ने अपनी बयान के दौरान यानी अपने वक्तव्य के दौरान ये भी कहा कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA उसने भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को शिद्दत पसंद तंजीम बताया था और कहा था कि इन पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए अमेरिका में। अब डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए रिपोर्ट आई थी तब तो लगाना था, हो सकता है अब बाइडन के रहते हुए ये मामला जैसे ऑस्ट्रेलिया से उभरा है तो वो अब अमेरिका में भी उसका असर दिखाई देने लगा और वहां पे प्रतिबंध लग जाए। आपने देखा होगा बाइडन ने उस शख्स को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने से इनकार कर दिया जिसके पिता RSS से जुड़े हुए थे और RSS का एक स्कूल चला रहे थे। साफ कर दिया कि उस शख्स को अपने मंत्रिमंडल में नहीं लेंगे। क्यों हुई है ये स्थिति पैदा कि डेविड शोब्रिज को ये कहना पड़ा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर RSS के इस संगठन विश्व हिंदू परिषद पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो इसी खबर के मुताबिक बताया गया कि 28 फरवरी का दिन था, कुछ सिख लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक भीड़ आती है सिखों पे हमला कर देती है, उस पूरे मामले में 4 सिख लोग घायल हो जाते हैं, उसका इसमें जिक्र किया गया है। कहा गया है कि सिखों पर हमला करने वाले हिंदुत्व से जुड़े हुए शिद्दत पसंद लोग हैं। ये अकेले मामला उठाने वाले सीनेटर नहीं हैं, इनके अलावा यहाँ के मंत्री जो हैं, मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को उठाया था उसी हमले के बाद। मंत्री का नाम है जोएफ ली, उन्होंने भी इस पूरे मामले को उठाते हुए कहा था कि इसके पीछे हिंदुत्व एलिमेंट्स हैं जो सिखों पर हमला हुआ है। तो अब पहले मंत्री बोले और अब सीनेटर बोले और सीनेटर ने सीधा कहा कि इन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। मंत्री महोदय ने तो यहाँ तक कहा था कि स्कूलों में जो शिद्दत पसंदी की पढ़ाई शिक्षा यानी कि दी जा रही है RSS से जुड़े हुए जो पब्लिक स्कूल हैं उसमें, उनसे जो है यहाँ के बच्चों को हिंसक बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक खबर लगातार उभर रही है। आप जानते ही हैं भोपू मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा, लेकिन साथ में अब यहाँ कुछ चीज़ों पर गौर कर लीजिए। RSS जो अपने आप को बहुत बड़ा स्वदेशी राष्ट्रवादी तमाम चीज़ें बताता है, ये VHP बजरंग दल वाले बताते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में सिखों पर हमला कर रहे हैं। और किस दौर में कर रहे हैं? जबकि देश के अंदर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपने आप को सिखों के करीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंच जाते हैं, किसी को बगैर बताए वहां जाके मत्था टेकने लग जाते हैं और वो तस्वीरें फिर मीडिया पे वायरल कराई जाती है। IRCTC जानते होंगे ना आप, रेलवे की जो कैटरिंग पूरी सिस्टम को देखता है, पूरे जो टिकटिंग बुकिंग के सिस्टम को देखता है, वो बाकायदा एक बुकलेट जारी कर देता है 19 पेज की और 2 से 3 करोड़ लोगों को ईमेल करके भेज देता है। उसमें बताता है देखो जी नरेंद्र मोदी ने सिखों के लिए फला टाइम पे ये किया, नरेंद्र मोदी ने सिखों के लिए फला टाइम पे ये किया, नरेंद्र मोदी ने सिखों के लिए फला टाइम पे ये किया। यही नहीं, जब संसद की नींव रखते हैं जो नरेंद्र मोदी, जो नया संसद बनने जा रहा है विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, तो उस दिन भी वो अपने संबोधन में जिक्र करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए भारत के सिखों ने भारत का सम्मान बढ़ाया और लॉकडाउन के दौरान जैसे लोग परेशान हाल थे उनकी काफ़ी मदद की है। यानी कि सरकार तो सिखों के करीब दिखने की कोशिश कर रही है, नरेंद्र मोदी अपने आप को सिखों का हिमायती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं, जिस फैक्ट्री से निकल के आए हैं, जो नागपुर में हेडक्वार्टर है RSS का, उससे निकला हुआ जो संगठन है VHP, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाहर दूसरे मुल्कों में सिखों पर हमला कर रहा है। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जब देश के कृषि मंत्री एक किसी मामले को लेकर मध्य प्रदेश जा रहे थे और रास्ते में उनको एक सिख फैमिली मिल गई ट्रेन के दौरान, उनके साथ खाना खाया, फोटो ट्वीट करके दिखाने की कोशिश की कि वो सिखों के साथ हैं। हालांकि ये तमाम कोशिशें तभी तक जारी थी जब तक कि इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करते हुए सिख दिखाई दे रहे थे सिंघू बॉर्डर वाले, लेकिन जब से राकेश टिकैत के हाथ में इसका नेतृत्व आया तब से इस आंदोलन को अब जाटों का आंदोलन बताने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको जाति विशेष के आंदोलन में समेटा जा सके। पहले इसको एक राज्य विशेष के आंदोलन में समेटने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तस्वीरें लगातार बदल रही हैं और ये बहुत बड़ी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के सीनेटर ने इस पूरे मुद्दे पर, जिनका नाम डेविड शोब्रिज है, उन्होंने बात की है कि विश्व हिंदू परिषद पे रोक लगा दी जाए। देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस और कदम बढ़ाती है, और कदम बढ़ाती है तो भारत की सरकार का उस पर क्या रिएक्शन होगा। और ये पार्लियामेंट में मामला उठने के बाद जो विश्व हिंदू परिषद पर सवाल खड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो ऑस्ट्रेलिया में उसकी गतिविधियां रुकेंगी या ऑस्ट्रेलिया में मुद्दा उठने के बाद जो विश्व हिंदू परिषद की उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के अंदर जो गतिविधियां हैं, जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें हैं, अगर सरकारें तो अब पूरी जगह इन्हीं की हैं, पूरे सिस्टम में इन्हीं के लोग भरे बैठे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने भी ये बात कही है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि अगर 2024 में कांग्रेस आ जाए तो सिस्टम में जो इनके लोग भर गए हैं उनसे लड़ना, उनसे जीतना, उनसे काम लेना आसान नहीं हो पाएगा। इन्हीं के यहाँ से निकल कर वो लोग आज सीटों पर बैठ चुके हैं, तो उनसे काम कराना आसान भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ असर पड़ेगा क्या?
भाई बोले ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे कुछ असर पड़ेगा क्या? अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया हमें नहीं मिली है इस पूरे मामले को लेकर जिस पे विश्व हिंदू परिषद ने अपना कोई रिएक्शन दिया हो, ना ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना ही यहाँ पे। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि पहले CIA रिपोर्ट जारी कर रहा था, अब ऑस्ट्रेलिया के सीनेट में उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बात की गई है कि सिखों पर जो हमला किया गया वो हिंदुत्व एलिमेंट्स ने किया है, और VHP जो RSS का संगठन है वो यहाँ क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और वहाँ के भाईचारे के लिए खतरा बन गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में घट रहे इस घटनाक्रम पर हम लोग नजर बनाए रखने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।